Good evening, students. Now today we are going to start the new topic. The name of topic gravitation and flotations. Let me discuss what is in the topic is gravitation and flotation. Lecture number 1. Let me discuss what point we cover in today's topic. The history of gravitation and the gravitations as well as the gravity, the force of gravity, and what is the gravitation, what is the basic difference between the gravitation and gravity, Newton's laws of gravitations, importance of gravity, what is the importance of gravity, properties of gravitational force, as well as the relation between electrostatic force and gravitational force. Now we will discuss one by one now. About history of gravitations. Yeah, they given the photographs of they are mostly Sir Isaac Newton, the Keplers, Galileo's, all contributions given for the discovery of Newton. So basically we are saying about that the discovery of gravitations is by Newton. He's giving the force of attraction between the molecules is depends upon which factor? Mass and inverse square of distance from their center of masses. Is given by first by the Newton. The Newton is given the basic introduction of the gravitation, that is force of attraction between the any massive objects. About if you are discussing about the gravitation, and gravitation is an attractive force. Always it is attracting through every objects. Here if you are observing one objects also here, the two persons are there, they are standing somewhere. It acts as a magnet. Whenever the objects they will attract. Suppose the object is here also. Okay. Now here also they will attract because the gravity always pushes towards the center. Gravity क्या करती है आपको ऑब्जेक्ट को क्या करती है सेंटर की तरफ ऐड करते हैं. तो ये भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट बॉल होगा तो यहाँ पे भी क्या करेगा बॉल यहीं पे जाएगा. यहाँ पे भी बॉल होगा तो क्या जाएगा तुम्हारा टुवर्ड्स द सेंटर. फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस इट इज ऑलवेज द अट्रैक्टिव फोर्स. हमेशा अट्रैक्ट करता है ऑब्जेक्ट को. किसी भी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है. Is not specifying and it is always towards the center of the gravity. It is the force of attractions है ना, attractive force है. Here the given the relation between the gravity and gravitation. Gravity यानी क्या है? Gravity is the force of the earth only. The gravitation is the force of any massive object. दो भी कोई भी massive object का force क्या है तुम्हारा gravitation? Any massive objects. Like the force between the sun and earth and moon, any massive of bodies है ना, जैसे कि force between two air molecules also, they are also having the mass. उनके बीच में का भी force क्या है तुम्हारा gravitation. Just force between the ये क्या है gravitation, the force between the two any two massive object, जिसको जो object को mass है उसके दोनों के बीच का attraction force यानी क्या है तुम्हारा gravitations. Okay. And the earth is attracting to the just only the specify now here. The gravity is a specification for earth only. The earth attracting to all the remaining molecules towards its center is known as the gravity. Got it? Here the gravitation is the force of attraction, is always attracting force. Gravity is the force of attraction because of the earth. Okay, the gravity is due to only earth and it is any massive object. The actings between any two bodies of the universe, not only two, those where having the mass in all the bodies where the mass will be there will be the attractions. Force of attraction between the all massive objects. Here gravity is the earth gravitational force pull on the body है ना, सिर्फ earth का ही force है. वो क्या है आपका gravitational force is lying on the near the surface of the earth. जितना surface नजदीक होगा उतना attraction क्या होगा ज़्यादा होगा. Yes, understood? कोई डाउट पूछना था आपको? बोलिए. हाँ, द फोर्स बिटवीन द मून एंड अर्थ इज अगेन द ग्रेविटेशन है ना. तो यहाँ पे क्या है मैसिव ऑब्जेक्ट कौन सा है तुम्हारा? दोनों मैसिव ऑब्जेक्ट है ना. तो अभी मून पे क्या है, मून पे एफेक्ट करती है ग्रेविटी भी एफेक्ट करती है मून पे. जहाँ पे तुम्हारी अर्थ का फोर्स आ रहा है उसे क्या करते हैं अपन स्पेसिफिक नाम दिया उसे द ग्रेविटेशन फोर्स. इसका सबसेट है. तो ग्रेविटेशन फोर्स में कोई भी मैसिव ऑब्जेक्ट आया है, एनी मैसिव ऑब्जेक्ट इज इन द ग्रेविटेशन. जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिकॉज ऑफ द अर्थ इज अ ग्रेविटी. समझ में आ गया? जो सिर्फ अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, मून सिर्फ अर्थ अट्रैक्ट करता है बराबर. मून को अर्थ ही अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो वो क्या है वहाँ पे ग्रेविटी हो गया बराबर है. मून को अर्थ को सन अट्रैक्ट करता है तो उसके दोनों का फोर्स कौन सा है? सन और अर्थ का फिश का फोर्स कौन सा है तुम्हारा? ग्रेविटेशन.
and force of any two objects. If you are saying the force between the moon and earth, gravitation also we can say. The atmospheric pressure, earth पे है एटमॉस्फेयर, 10 पार्टिकल से एटमॉस्फेयर एयर है, कहाँ है तुम्हारा अट्रैक्ट टुवर्ड्स द ग्रेविटी, दैट इज नोन एज ग्रेविटी. ग्रेविटी की वजह से अट्रैक्ट हो रहा है ना. तो वो फोर्स ऑफ जहाँ पे तुम्हारा इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी हो रहा है, यहाँ पे जो देखे अपन ने ये फिगर में देखो, ये क्या है आपकी अर्थ है ना. ये अर्थ की तरफ क्या है, सब ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं तुम्हारे पुल हो रहे हैं. तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा ये फोर्स क्या है, तुम्हारा ग्रेविटी फोर्स है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. जो फोर्स तुम्हारा अर्थ की वजह से आ रहा है वो क्या है, तुम्हारा ग्रेविटी. ओके, ग्रेविटी क्या है, सबसेट ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स. ग्रेविटेशन पता है सेट हो गया मैथ्स में आपका है ना. सबसेट यानी उसका सम पार्ट, उसको स्पेसिफिक कर दिया अपन, नाम दे दिए है ना. ग्रेविटेशन का स्पेसिफिक नाम क्या है तुम्हारा, ग्रेविटी. ग्रेविटी यानी जस्ट फोर्स बिकॉज ऑफ अर्थ ओनली, यानी क्या है ग्रेविटी. सिर्फ जो अर्थ एक्सर्ट करी वो फोर्स क्या है तुम्हारी ग्रेविटी. और फोर्स बिटवीन एनी टू मैसिव ऑब्जेक्ट, कुछ भी जहाँ पे मास एक्सर्शन में एग्जिट में है उसके दोनों का फोर्स, या उससे कितने भी ऑब्जेक्ट होने उसमें का फोर्स यानी क्या है ग्रेविटेशन. समझ में आया क्या. फोर्स बिटवीन एनी टू मैसिव ऑब्जेक्ट, कोई भी जहाँ पे ऑब्जेक्ट को मास होगा उसके दोनों के बीच का अट्रैक्शन वो क्या है तुम्हारा ग्रेविटेशन. ओके, गिवन द वर्ड ग्रेविटी हैज द ओरिजिन, द लैटिन वर्ड्स ऑफ ग्रेविटी इज नेवर द यूज, ग्रेविटी मीन्स द हेवीएस्ट. बोलिए, अंडरस्टूड. Yes, very good. I will explain that one also. है ना, that one also I will explain. When there any object will be revolving, there will be the balancing force, because of when the objects are revolving there will be centrifugal force. पता वही तो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से क्या होता है, तुम्हारा ऑब्जेक्ट क्या होता है तुम्हारा दूर जाता है, और ग्रेविटी क्या करता है उसे पुल करता है. बिकॉज ऑफ दे आर गोइंग टू बैलेंस, इसलिए क्या करता है एक ऑर्बिट में ही मून रिवॉल्व होता है. द सेम वे अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स आल्सो. When the objects will be in motion, अपन बोलते हैं है ना, फोर्स बिटवीन द सन एंड अर्थ, दोनों के बीच में अट्रैक्शन है. तो अर्थ सन के नजदीक जा रही है क्या, नहीं जा रही. क्यों नहीं जा रही, बिकॉज द टू फोर्स आर गोइंग टू बैलेंस हियर. कौन से सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल. सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है, जो फोर्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स द सेंटर वो क्या है तुम्हारा सेंट्रीपिटल. सेंट्रीपिटल क्या करता है, अभी अर्थ जो है, अर्थ क्या कर रहा है, मून को खींच रहा है. वो मून को खींचने वाला फोर्स कौन सा है, सेंट्रीपिटल. और जो गोल घूम रहा है, गोल घूमने की वजह से क्या आ रहा है तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. आप मेरी गो राउंड में बैठते हो ना, खेलते हो झूले, जब झूला स्टेबल होगा तो झूला उसकी जो सीधे पॉइंट होगा, और जब घूमता है जब क्या होता है, इसके ऐसा विंग्स उसके दूर जाते हैं, फेंके जाता है ना, वो क्या है सेंट्रीफ्यूगल. अब फैन के ऊपर कुछ पेटल्स डालो, फैन चालू करो तो जो पेटल्स क्या है तुम्हारे बिखर जाएंगे. क्यों बिखर जाएंगे, बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. दोज फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, और बिकॉज इट इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट तुम्हारा मोशन में है, मोशन के में रहने से क्या लग रहा है उसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, और सेंट्रीपिटल से क्या कर रहा है बैलेंस कर रहा है. इसलिए क्या करता है, कोई भी ऑर्बिट में, पर्टिकुलर ऑर्बिट में कोई प्लैनेट वगैरह सैटेलाइट्स वगैरह रिवॉल्व होते हैं. ओके, अंडरस्टूड दैट वन. देखिए, तो यहाँ पे बताया है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन क्या है. इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ग्रेविटेशन इज अ काइंड ऑफ फोर्स एंड इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन ऑल काइंड ऑफ द मैसिव ऑब्जेक्ट. सभी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करने वाला फोर्स है, मैसिव ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने वाला फोर्स है ना. द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन, मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ सन ने क्या करा है, उसको होल्ड करके रखा है. सन होल्ड नहीं करता था, ऑब्जेक्ट तो सभी मोशन में है ना. तो सन होल्ड नहीं कर रहा तो ऑब्जेक्ट कहीं भी तुम्हारा रैंडमली इधर उधर जाते थे. दे विल फ्लाई टेंजेंशियली. आप शायद पता होगा आपको, आप संक्रांति के फेस्टिवल में टाइम खेलते होंगे, लड्डू पता है आपको, पत्थर बनते हैं अपन घुमाते हैं. When we are revolving the any objects around the circular motion, है ना, तो क्या है, जब उसको थ्रेड जो है, थ्रेड क्या करती है, उसे पुल करती है. वो कौन सा फोर्स है तुम्हारा सेंट्रीपिटल, है ना. तो पुल करने वाला थ्रेड को पकड़ कर रख रहे हैं अपन, वो सेंट्रीपिटल. अब इजी सडनली वो थ्रेड छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, पत्थर तुम्हारा टेंजेंशियली फ्लाई हो जाएगा, निकल जाएगा. उसी तरह से क्या कर रहा है, सन क्या कर रहा है, इसको सबको होल्ड करके रखा है. ये सब ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारे मोशन में है. ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट्स एंड दे ऑल आर इन द मोशन. And because of that they are applying the centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगा रहे हैं, और अर्थ क्या कर रहा है तुम्हारा, पुल कर रहा है. दोनों बैलेंस होने की वजह से क्या हो रहा है तुम्हारा, दे आर रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट. द सेम फोर्स एक्टिंग फॉर द न्यूट्रॉन आल्सो. प्रोटॉन का फोर्स क्या है, प्रोटॉन चार्ज पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन्स आल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, है ना. द सेम काइंड ऑफ द फोर्स हियर देयर आल्सो. द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन. तो मून एक्चुअली सन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे मास होना चाहिए, है ना. तो अर्थ,
तो क्या है तुम्हारा, द टाइड्स ड्यू टू मून एंड द अर्थ। अर्थ में और तुम्हारे मून की वजह से, रोटेशन की वजह से टाइड्स आते हैं। क्यों टाइड्स आते हैं? बिकॉज ऑफ सेम अगेन द मून अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ एंड अर्थ इज आल्सो अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द मून। तो उसको आपको पता है शेप ऑफ अर्थ कैसा है तुम्हारा, एक्चुअली अर्थ में 71% क्या है तुम्हारा, वाटर है। वो लिक्विड इज नॉट हैविंग पर्टिकुलर शेप, लिक्विड को पर्टिकुलर शेप होता है कि उसका नहीं, जो कंटेनर में डालेंगे उसका शेप ले लेगा, है ना। तो क्या है, और क्या है, सपोज यहाँ पे मून आपका, यहाँ पे सपोज मून है और यहाँ पे अर्थ है, तो क्या होगा, तो अर्थ क्या हो जाएंगे, ऐसी थोड़ी सी तुम्हारी मून की तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट होगी, बराबर है। और मून कंटिन्यूसली रोटेशन में होगा आपका, जहाँ जहाँ मून जाएगा वहाँ पे उसका अट्रैक्शन उधर पड़ेगा। यहाँ पे मून गया तो अट्रैक्शन क्या होगा, यहाँ पे सपोज मून हुआ तो यहाँ पे अर्थ थोड़ी सी इधर टिल्ट होगी। तो जहाँ जहाँ मून रोटेट कर रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, तुम्हारा अर्थ का जो कंटेनर जो है, इस कंटेनर दबाने के बाद में कैसा होता है, वेव्स आते हैं ना, तो उसकी वजह से क्या है, तुम्हारे टाइड्स आ रहे हैं। टाइड्स बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ मून। तो जैसे सर मून रोटेट हुआ, अर्थ तुम्हारी उसके मून की तरफ क्या हो रही है, थोड़ी सी अट्रैक्ट हो रही है। अट्रैक्ट हो रही है से क्या होगा, तुम्हारे वहाँ पे जनरेशन वेव्स आएंगे और वो तुम्हारा कंटिन्यूसली आता रहेगा। यस, किसको, हाँ करता है ना। सन अर्थ क्या है तुम्हारा, अर्थ में भी अर्थ का और सन का कितना डिफरेंस ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है डिस्टेंस। हाँ अट्रैक्ट करता है, रिवॉल्व उसके भी वेव्स आते हैं बेसिकली जब भी होता है, बट एक्चुअली इसका रोटेशन अभी सन को राउंड मारने कितना समय लगता है, नियर अबाउट 365 डेज। और मून का क्या है, टाइड्स 28 डेज, मून पूरा पाथ खत्म करता है, बराबर है। तो आपने अर्थ के अराउंड घूमने वाला ज़्यादा कौन है, मून। तो उसके मून की वजह पर इसलिए टाइडल जो मून की वजह से वेव्स क्या आ रहे हैं तुम्हारे, रैपिड हो रहे हैं, है ना। कंटिन्यूसली मून घूम रहा है आपका, तो उसकी वजह से क्या वेव्स अपने को मून के दिखते हैं। सन का है, सन भी सन की वजह से भी वेव्स आएंगे। सन भी क्या तुम्हारा केपलर्स लॉ है अपने आगे, सन भी क्या तुम्हारा इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। तो ये अपनी जो प्लैनेट के जो डिस्टेंस है, अर्थ यहाँ से घूम रही है, तो यहाँ के दोनों में भी बीच में अट्रैक्शन है, लेकिन ये क्या है तुम्हारा कांस्टेंट कंटिन्यूसली सेम फोर्स लगता है। सेम फोर्स लगे तो उतना अट्रैक्शन में उतना कुछ फर्क पड़ेगा क्या ज़्यादा नहीं, एक ही सेंटीमीटर फोर्स में घूम रहा है। पर यहाँ पे क्या है, मून यहाँ पे सडन आ गया, मून यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, तो हर बार क्या होगा तुम्हारा, इसका शेप साइड तुम्हारा वो उसके मून के जहाँ जहाँ मून जाएगा उसकी तरफ से साइड उसका मूव होते जाएगा। तो उसकी वजह से क्या वहाँ पे कंटिन्यूसली तुम्हारे वेव्स आते रहेंगे, समझ में आ गया। सन की वजह से भी आ गया, लेकिन उसका इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि बहुत डिस्टेंस पे भी है और वहाँ पे जो स्पीड है कंपेरेटिवली द स्पीड ऑफ दैट अर्थ है ना, इसके कंपैरिजन में इसे क्या लगता है, अराउंड कंप्लीट करने के लिए 365 डेज लगते हैं। कितने लगते हैं इसे दे, और मून को विदिन 28 डेज, बराबर है। मून क्या है, अर्थ के बहुत नजदीक भी है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स बताया मैंने, डिपेंड्स अपॉन मास एज वेल एज डिपेंड्स अपॉन द इनवर्स स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर ऑफ मास। तो इसका डिस्टेंस क्या है, कंपेरेटिवली बहुत कम है, इसलिए अट्रैक्शन फोर्स क्या है इसका ज़्यादा है। आगे फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर द फोर्स दैट्स बाइंड द अर्थ, कौन सा फोर्स बाइंड कर रहा है अर्थ को, ग्रेविटी, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स बाइंड कर रहा है ना, मास है। तो अभी यहाँ पे क्या है तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारे देखेंगे तो आपका यहाँ पे सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट है सेंटर में क्या है, जो भी जब तुम्हारे जो मेटल्स मोल्टेड फॉर्म में है, इसका मतलब सबसे ज़्यादा मास का है तुम्हारा सेंटर में। तो यहाँ की सब मैसिव ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, इसे अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा लाइटर पार्टिकल एयर भी क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ। उसे क्या बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एयर को भी क्या कर रहा है अर्थ, अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे सब आजू बाजू की जो भी पार्टिकल्स है वो अट्रैक्ट कर रहा है। वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी इज जस्ट फोर्स ऑफ अर्थ, so the gravity, it is also kind of the subset of the gravitational force of gravity nearly same, just खाली अपन स्पेसिफाई करें उसे। फोर्स ऑफ अर्थ इसे बोले ग्रेविटी, और फोर्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इज नोन एज द ग्रेविटेशन, गॉट इट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अर्थ दिया है आपको, अर्थ के अराउंड कौन घूम रहा है आपका, मून, है ना। तो ये दोनों को बाइंड करके रखने वाला भी फोर्स कौन सा तुम्हारा, ग्रेविटेशन फोर्स, और ग्रेविटी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशन क्या है यहाँ पे, क्योंकि क्या है अर्थ का अट्रैक्ट कर रहा है उसे मून, इसलिए अपन उसको ग्रेविटी भी बोल सकते, फोर्स ऑफ द अर्थ ऑन द अट्रैक्टिंग ऑन द मून, यस। हाँ, सेंटीपिटल फोर्स का खाली तुम्हारा टूवर्ड द सेंटर आए तो सेंटीपिटल हो गया, सिर्फ अट्रैक्ट ही कर रहा है क्या वो, नहीं, इट विल बी सेंट्रीफ्यूगल आल्सो। और दोनों बैलेंस होने की वजह से क्या हो तुम्हारा, वो रोटेट में हो रहा है, दोनों बैलेंस हो रही है, इसलिए क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट तुम्हारा कंटिन्यूसली रोटेशन में आ रहा है। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ बिकॉज ऑफ द बैलेंसिंग द सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल force, okay. Here
just given the some examples, what will happen when the no gravity, suppose just imagine भी करना बहुत मुश्किल है, if the is no gravity, अर्थ आपको समझो अट्रैक्ट करती नहीं थी, अर्थ पुल नहीं करती तो क्या होता था, देयर इज नो, हाँ अपन तो उड़ते थे लेकिन अपने आसपास हवा ही नहीं रहती थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ द अर्थ इज अट्रैक्टिंग द मॉलिक्यूल्स, एयर नहीं रहता था तो अपन ब्रीदिंग करना मुश्किल था, प्लांट्स सभी डेड होते थे, प्लांट्स क्या ह्यूमन बींग्स आल्सो, वी आर आल्सो नॉट अनेबल टू स्टेबल, अपन भी फेंके जाते थे बिकॉज ही इज नॉट अट्रैक्टिंग, मर ही जाते थे, बच ही नहीं पाते थे। तो यहाँ पे है ना फोर्स है बोल के बना रहे हैं अपन, बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिंग, अर्थ इज अट्रैक्टिंग टू द ऑल द ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ वी आर स्टेबल ऑन द अर्थ। वो पिछला पिक्चर देखा था आपने, है ना, यहाँ पे भी वो ऑब्जेक्ट था और यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टेबल हो सकता था क्या, नहीं, और अर्थ जैसी घूमती थी तो ऑब्जेक्ट क्या तुम्हारा टेंजेंशियल डायरेक्शन में फेंके जाता था, द ऑब्जेक्ट्स विल बी फ्लाइंग टेंजेंशियल डायरेक्शंस। तो क्या डिजास्टर होते यहाँ पे दिखाया है, देखो यहाँ पे द नो एटमॉस्फेरिक गैसेस बिकॉज अर्थ इज नॉट अट्रैक्टिंग एनी मॉलिक्यूल्स, किसी भी गैस को भी नहीं अट्रैक्ट करेंगी या कोई सरफेस को भी अट्रैक्ट नहीं करेगी या किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट नहीं करेगी, तुम्हारे अंदर का लावा भी ऊपर आ जाएगा, किधर भी जाएगा उसको भी पर्टिकुलर जगह नहीं है, क्योंकि अभी डेंस पार्टिकल क्या है, अभी डेंस पार्टिकल तुम्हारे एक जगह पे जमा है ना, ग्रेविटी तो वो कोई जमा रहने का वजूद ही नहीं था उसे। देयर इज नो एटमॉस्फेरिक गैसेस वुड बी फाउंड ऑन द अर्थ, कोई एटमॉस्फेयर गैस ही नहीं होते थे, तो गैस नहीं तो फिर अपना रेस्पिरेशन करना मुश्किल है, प्लांट का फोटोसिंथेसिस करना मुश्किल है, तो इसका मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टेंस में नहीं हो सकते थे। द बिल्डिंग्स एंड सॉलिड स्ट्रक्चर्स वुड बी द ब्रेकअप, कोई बिल्डिंग बन दो, सॉलिड स्ट्रक्चर बन दो, कोई भी जो है दे आर नॉट गोइंग टू स्टेबल, वो भी निकल जाते थे, है ना, डस्ट, हवा से भी डस्ट भी नहीं था, कुछ भी रहता नहीं था, क्योंकि दे आर ऑल द गोइंग टू स्कैटर्ड। द माउंटेन्स, लैंड्स, रॉक्स वुड बी ब्रेकअप, सब भी तुम्हारा जहाँ पे भी तुम्हारा सरफेस है सब तुम्हारा, क्योंकि जो व्हेन दे आर गोइंग टू रिवॉल्व वेरी वेरी रैपिडली, जब अर्थ घूमती है उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो सब क्या टेंजेंशियल डायरेक्शन में सब तुम्हारे मूव होते थे, बिकॉज ऑफ बाइंडिंग फोर्स दे आर द स्टेबल ऑन द अर्थ। द अर्थ वुड बी ब्रेकअप अपार्ट फ्रॉम द फ्लोर्स अवे इनटू द स्पेस। द अर्थ इनर कोर यानी तुम्हारा अंदर का जो लावा वगैरह है, जो मेल्टन, जो हेवी मेटल है, वो क्या है अर्थ के सेंटर में है, और जहाँ पे मास ज़्यादा है उसी तरफ सब अट्रैक्ट होते हैं, तो वो भी पॉसिबल नहीं था। द बर्स्ट इन द लिथन ऑफ एक्लाइट एक्सप्लोजन्स, ओके, द अर्थ वुड ब्रेक्स इनटू द पीसेस वुड बी फ्लोट अराउंड द स्पेस, द एवरीथिंग दैट हेल्ड्स टुगेदर ग्रेविटी वुड स्लोली डिसइंटीग्रेट, तो क्या है, क्या सब तुम्हारा बिखर जाता था, कुछ स्टेबल नहीं होता था। द सन कुड एक्सप्लोड, सन भी क्या तुम्हारा फट जाता था, क्योंकि उसमें भी ग्रेविटेशन नहीं है ना, ग्रेविटेशन फोर्स ही नहीं है, तो क्या है तुम्हारा वहाँ पे भी उसको फिर असर नहीं होता था। तो देखिए, तो अभी क्या है यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, तो यहाँ पे लॉज बताया, तो यहाँ पे बताया होगा आपको, इस एग्जाम्पल के इमेजिन करो, ये क्या होने आपका सन समझो और ये तुम्हारे दो प्लैनेट समझो, एग्जाम्पल के लिए इमेज करो, तो क्या कर रहा है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग फोर्स, हमें हर ऑब्जेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट ही करता है, ओनली अट्रैक्ट। हाउ दिस गोइंग टू अट्रैक्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स अपॉन द टू फैक्टर, कौन सा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, जितना मास ज़्यादा उतना अट्रैक्शन ज़्यादा, मास कम अट्रैक्शन भी कम, एज वेल एज देयर इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर ऑफ द मासेस, दो मास का सेंटर से डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो अट्रैक्शन भी क्या होगा, कम होगा, डिस्टेंस कम तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा, तो ये रिलेशन है। यहाँ पे देखो, सर आइजैक न्यूटन इन 1687 प्रोड्यूसेस द लॉज अबाउट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, दो ऑब्जेक्ट के बारे में बताया उन्होंने, और कैसा होता है ना, इज नोन एज न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। तो क्या है न्यूटन्स लॉ, क्या बोलता है तुम्हारा, द फोर्स बिटवीन द एनी टू ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, हमेशा क्या करे दूसरे को खींचते ही रहेगा, है ना, जैसे कि आप में मास है, मुझ में मास है, तो अपने दोनों में भी अट्रैक्शन है, इन एवरी ऑब्जेक्ट जिसको मास है उसके बीच में अट्रैक्शन है। हाँ, वो डिपेंड करेगा तुम्हारा कितना है, यहाँ पे दिखाया देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे नंबर 1 प्रॉपर्टी, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग फोर्स, हर एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, अट्रैक्ट ही करता है, इट विल नॉट रिपेल। अब देखिए इसके बारे में, मैग्नेट के बारे में देखें, चार्जेस के बारे में देखें, सम टाइम्स ऑफ मैग्नेट्स दे आर अट्रैक्ट, मैग्नेट का क्या है, स्पेसिफिक है, मैग्नेट क्या करता है, इट अट्रैक्ट्स ओनली आयरन, निकेल एंड कोबाल्ट, बराबर है, मैग्नेट में क्या है, सेम पोर्ट है तो रिपेल करेगा, पर अर्थ का वैसा है क्या, नहीं, जिसको मास है, दोज आर्टिकल हैविंग द मास इट विल बी अट्रैक्टिंग टू ऑल द ऑब्जेक्ट्स, स्पेसिफाई नहीं है, तो क्या है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग फोर्स, है ना, बोलिए, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, हमेशा कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा, अट्रैक्ट ही करेगा, और कैसे अट्रैक्ट करेगा, इसका मास देखो m और इसका मास m2, द फोर्स इज डायरेक्टली द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस,
एंड द इनवर्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर ऑफ द मासेस। डिस्टेंस यहां से नहीं ले रहे अपन, इसके सेंटर से, इसका सेंटर और इसके सेंटर से डिस्टेंस ले रहे, डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर ऑफ द मासेस। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या बन गया तुम्हारा, F इक्वल टू जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। तो ये जी क्या है तुम्हारा, जी इज अ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू जो है प्रैक्टिकली अपन फाइंड किए, द वैल्यू इज ऑलवेज सेम, इसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी। दैट वैल्यू इज नोन एज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो वैल्यू की कितनी है आपकी जी की, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। तो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। उसे क्या बोलते हैं अपन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका मतलब इसकी वैल्यू कहीं चेंज होगी क्या, नहीं, अर्थ पे भी उतनी ही है, मून को भी उतनी ही है, और कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो अट्रैक्शन होगा तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी तुम्हारी, फिक्स होगी, ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, इट विल रिमेन द सेम। अभी आप जैसे कि 18 को भी उतनी थी, 1887 को भी उतनी थी, 1687 को भी उतनी थी, 2025 को भी वैल्यू उतनी है, इसमें वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। समझ में आया आपको, हाँ। और ये कैसा कर रहा है, हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है तुम्हारा, अट्रैक्ट ही कर रहा है, पुल कर रहा है एक दूसरे को, क्या कर रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं तुम्हारे, पुल कर रहे हैं, ऑलवेज अट्रैक्टिव। दोनों भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहे हैं, हमेशा अट्रैक्ट ही कर रहा है। देखिए तो यहाँ पे बताया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, द फोर्स ऑफ द पार्टिकल्स इन बिटवीन द चार्जेस। दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स है वो फोर्स क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए फॉर्मूला बताता मैं आपको, द फोर्स इज डिपेंड्स अपॉन डायरेक्टली द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस Q1 Q2 बाय एंड F1 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, F इक्वल्स टू क्या है, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वहाँ पे K की वैल्यू कितनी है अपन निकाले 1। यहाँ पे प्रैक्टिकली क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या है, K की वैल्यू क्या, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है 1। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम देयर सेंटर ऑफ द मासेस। यहाँ पे भी क्या है, चार्जेस के दो सेंटर से। अभी यहाँ पे क्या है, इफ द फोर्स इज सपोज पॉजिटिव, फोर्स पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है तुम्हारा, दे आर ऑलवेज इन अ रिपल्सिव मोड। फोर्स पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या है, दे आर ऑलवेज इन अ रिपल्सिव मोड, एंड द फोर्स इज सपोज नेगेटिव, दे आर ऑलवेज इन अ अट्रैक्टिंग मोड। तो अपने ग्रेविटी में वैसे था क्या, ग्रेविटी में ओनली अट्रैक्शन था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में क्या है तुम्हारा, अट्रैक्शन एज वेल एज रिपल्शन है ना। सेम पार्टिकल होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, बराबर है। तो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव तो क्या आएगा, आंसर क्या आएगा आपका, फोर्स विल बी पॉजिटिव, स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो फोर्स भी क्या आएगा आपका पॉजिटिव है ना। यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी क्या आएगा, आंसर क्या आएगा पॉजिटिव, इट विल अगेन। बट हियर इफ यू आर फाइंडिंग वन पॉजिटिव एंड वन इज नेगेटिव, देयर विल बी द अट्रैक्शन एंड फोर्स विल बी द नेगेटिव। यस, नहीं, ग्रेविटी इज ऑलवेज अट्रैक्टिंग फोर्स। ग्रेविटी क्या करती है, हमेशा ऑब्जेक्ट को क्या करती है, अट्रैक्ट ही करती है ना। नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, याद रखो ग्रेविटेशन फोर्स क्या है तुम्हारा, यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जेस है ना, यहाँ पे चार्जेस है तो चार्जेस क्या होगा तुम्हारा, रिपेल भी हो गए, अपोज अट्रैक्ट भी हो गए, रिपेल हो गए। अपन अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं, साइन कन्वेंशन करते हैं अपन, है ना। तो क्या अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या, पार्टिकल नजदीक आ रहा है दूर जा रहा है, उसके लिए क्या करते हैं अपन, समझने के लिए उसके अपन पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन दिखाते हैं, है ना, फॉर आवर कन्वीनियंस। तो चार्जेस में क्या है, सेम चार्जेस पॉजिटिव पॉजिटिव, द रिपेल द फोर्स विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे भी क्या है, सपोज नेगेटिव भी होगा तो भी क्या होगा, नेगेटिव नेगेटिव का प्रोडक्ट कितना आएगा आपका, पॉजिटिव, है ना। हियर आल्सो द फोर्स इज पॉजिटिव, हियर द फोर्स हियर ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2, इसका मास कितना है तुम्हारा m1 और इसका मास कितना है m2, एंड दैट d इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मास। तो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा, F इक्वल्स टू G m1 m2 बाय डी स्क्वायर, यहाँ पे डी स्क्वायर आएगा, है ना। यहाँ पे R था तो यहाँ पे R स्क्वायर आएगा, समझे क्या, फॉर्मूला नियर अबाउट सेम है। तो यहाँ पे वैल्यूज अलग अलग है। हाँ, इसकी रेंज क्या है तुम्हारी, ग्रेविटेशन की रेंज बहुत ज़्यादा है, ग्रेविटेशन फोर्स की रेंज क्या है, बहुत ज़्यादा है, बट रेंज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज वेरी लेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की रेंज क्या है, आप जो पेपर देखते हैं ना, पेपर पे रब करते हैं और छोटे छोटे पीस लगाते कोम पे, तो वो क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसकी रेंज बहुत कम है, बहुत दूर से अटैक करेगा क्या पेपर को, नहीं करेगा, बट द फोर्स इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब अर्थ का पेपर, अर्थ पे पेपर है क्या, आपने पेपर ऊपर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, फोर्स इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स, ताकत उसकी ग्रेविटी से ज़्यादा है, बट रेंज क्या है उसकी बहुत कम है ना। तो देखिए, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया आपको, देखिए
the relation between the F equals to g mm by d square, the quantity g is known as the universal gravitational constant. है ना, ये वैल्यू क्या है? Depends upon the values of small g at the place of the observer. No, it is used only when the earth is one of the two masses. It is the greatest at the surface of the earth. Is the universal gravitational constant in nature. सब तरफ क्या है तुम्हारा, वो क्या है वैल्यू तुम्हारी? It will be the constant. It will be the universal gravitational constant. Okay. Here the second one, the value of g is in 1900 it was 6.673 10 to minus 11. Universal constant है. It will be remain same. The value of g is now 2007 also, 2025 also will remains the same. तो कहाँ है आपका ये आंसर होगा, बोलिए. हाँ, डेसिमल अभी एक्चुअली क्या है, इसकी वैल्यू इतनी नहीं होती. डेसिमल क्या है, स्पेसिफिक. अभी 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे कोई बुक में. अभी आपको डिपेंड करता है आपको कितने सिग्निफिकेंट तक आपको क्लैरिटी चाहिए, है ना. तो जितने सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ोगे उतने क्या तुम्हारी अप्रोक्सीमेशन तुम्हारा ज़्यादा आएगा, है ना. यहाँ पे कोई बुक में 6.673 दिया है, कुछ बुक में 6.673 दिया है ना, खाली 6.7 दिया है. डिपेंड करता है बुक में, और आप लोग को क्या है जब कैसा सॉल्व करना है उस पर डिपेंड, आप लोग कौन सी वैल्यू लेना है वो देते भी हैं, पर ये वैल्यू आपकी गिवन है. देखिए समझ में आ गया इसका आंसर क्या आएगा. द नेक्स्ट वन, द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड अ पॉइंट मास ओनली, द अर्थ एंड सन ओनली, एनी टू बॉडीज हैविंग द सम मास एंड टू चार्जेस बॉडीज. एनी टू बॉडीज है ना, एनी टू बॉडीज हैविंग द सम मासेस, कुछ भी मास होने दो उसे, है ना. अर्थ और पॉइंट मास में भी है, ओनली नहीं है, उसमें भी है, इसमें भी है और सभी में भी है. जहाँ पे तुम्हारे मास एग्जिस्टेंस में आया है वो कौन सा तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स. वेरी गुड. द नेक्स्ट वन, देखिए इवन थ्रोन द स्टोन आल्सो अट्रैक्ट्स द अर्थ टुवर्ड्स इटसेल्फ, द अर्थ डज नॉट मूव. तो क्या है, स्टोन भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, स्टोन भी अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है और अर्थ भी स्टोन को अट्रैक्ट कर रहा है, पर अर्थ ऊपर जाती है क्या? नहीं. व्हाई इज इट सो? बिकॉज द मास, वेरी गुड, द मास ऑफ अर्थ इज अ वेरी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू द ए, because the earth of the greater the mass of the earth, correct, because the less mass of stone, correct है, ये भी सही है ना. force exerted by the stone is less, force are both the same according to Newton's third law. The force exerted both are the same, but because of the greater mass of the earth the stone is going to attract, or comparatively the lesser mass of the stone is attract towards the earth. हाँ, force, what is the formula of force? Force equals to mass and acceleration. If force is constant, okay, the force is constant, if the mass is greater then if F is constant then M is inversely proportional to the A. तो मास बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा एक्सेलरेशन कम होगा. तो स्टोन क्या होगा, सी वाला क्या हो रहा है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द स्टोन इज लेस. फोर्स सबका सेम है ना. न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है, एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. यहाँ पे क्या कर तुम्हारी अर्थ भी अट्रैक्ट करिए फोर्स स्टोन को, तो यहाँ पे भी फोर्स क्या है तुम्हारा एफ है, और यहाँ पे भी फोर्स क्या है तुम्हारा एफ ही है, उतना ही फोर्स है. अर्थ भी उतना ही फोर्स अट्रैक्ट कर रही है और स्टोन भी उतना ही फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ. एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो यहाँ पे एफ इक्वल्स टू एम है और यहाँ पे भी क्या है तुम्हारा एफ इक्वल्स टू क्या है एम है. तो यहाँ का अर्थ का मास क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत कम होगा. अर्थ का एक्सेलरेशन क्या होगा कंपैरेटिवली बहुत कम. यहाँ पे इसका मास बहुत कम है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बहुत ज्यादा. इसलिए स्टोन क्या दिख रहा है आपको, एक्सेलरेट होते समय दिख रहा है. यहाँ पर अर्थ एक्सेलरेट होते समय दिखती है क्या, नहीं, बिकॉज ऑफ द मास ऑफ अर्थ इज मोर, है ना. तो मास ऑफ अर्थ क्या बहुत ज्यादा है, इसलिए कि आपने को उसके बारे में समझ नहीं आया. तो जैसे कि आपके जो रिसर्च भी हुए, डिस्कवरी भी थी, तो वो भी आपने डिस्कवरी भी धीरे धीरे समझ में आया. अपन स्टार्टिंग में जो क्या बोलते थे लोग, अर्थ स्टेबल है, अर्थ खाली सन के अराउंड रिवॉल्व हो रहा बोलते थे. फिर बाद में हमें समझ में आया कि सन भी क्या करता है, गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व होता है. तो ये धीरे धीरे आप लोग को समझ में आ गई कुछ बातें, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज, वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी. द ग्रेटर द अर्थ एंड द लेसर ऑन द मून, करेक्ट है, यस. हाँ, इट इज रिवॉल्व अराउंड द मैसिव ऑब्जेक्ट, ब्लैक बॉडीज होते हैं वहाँ पे, तो उसके अराउंड जहाँ पे मास ज़्यादा है वो उसके और बड़े गैलेक्सी के अराउंड पे रिवॉल्व होते हैं. जहाँ पे भी, यस, डेफिनेटली यस. हियर द ग्रेटर द मास. अभी यहाँ पे और एक क्वेश्चन है, देखो ये भी क्या बताया, लेसर ऑन द अर्थ एंड ग्रेटर ऑन द अर्थ. कैसा होगा, लेसर ऑन द अर्थ एंड
अर्थ पे कभी कभी लेस भी आ सकता है वेट, बिकॉज वेट इज डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी। अब ये क्या होता है तुम्हारा, एक्चुअली इट इज डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द अर्थ। यहाँ पे क्या होता है, पोल पे क्या होता है तुम्हारा, डिस्टेंस कम है, तो यहाँ पे ग्रेविटी क्या है तुम्हारी, ज्यादा है। यहाँ पे क्या है, ग्रेविटी ज्यादा है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेट तुम्हारा मैक्स आएगा, और यहाँ पे वेट क्या आएगा तुम्हारा, कम आएगा। यहाँ पे मैक्सिमम आएगा और यहाँ पे लेस भी आएगा, है ना। तो यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से ऐसा लगता है यहाँ पे मून होना चाहिए था, छोड़ो ये भी है, तो फिर ऐसा आता है। तो बट मोस्ट करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन, द लेसर ऑन द अर्थ। कब लेसर है वो मेंशन नहीं किया उसने, कब लेसर, इक्वेटर पे लेसर होता था और पोल पे क्या होता था तुम्हारा ग्रेटर, बट नॉट मेंशन, इसलिए क्या करना है आपको, आंसर 1 ही लिखना है। ओके, द नेक्स्ट वन देखिए, two masses of 50 किलोग्राम एंड 100 kilograms आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। एक मास दिया तुम्हारा 50 kg और दूसरा मास दिया आपको, एंड डिस्टेंस इज गिवन हाउ मच, 10 मीटर। व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। फॉर्मूला क्या है आपका, F इक्वल्स टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे G की वैल्यू क्या है, 6.673 10⁻11 इंटू 50 इंटू 100 डिवाइड बाय 100, ये कैंसिल हो गया आपका, है ना। तो 50 का उसका मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आएगा वो क्या होगा आपका आंसर। यूनिट क्या आएगा इसका, न्यूटन। निकाल सकते हो ना आगे, हाँ। तो देखिए द नेक्स्ट वन, तो यहाँ पे क्या बताया, न्यूटन रिड्यूसेस द इनवर्स स्क्वायर लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन ने बताया इनवर्स स्क्वायर लॉ, उसका मतलब क्या बताया न्यूटन ने, 1/r स्क्वायर। जो डिस्टेंस बढ़ेगा, जब फोर्स क्या होगा तुम्हारा कम, तो उसके लिए क्या करना पड़ा उसे, हाँ, केप्लर्स लॉ के बारे में ही बताना है ना। तो उसमें क्या बताया उसने, किसे रिड्यूस किया उसमें, बाय यूजिंग द केप्लर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केप्लर्स लॉ के प्लैनेटरी मोशन से हिसाब से क्या कर दिया उसने, बताता मैं आपको, सब बताता हूँ, टेंशन मत लो। केप्लर्स ने क्या है, इसके लॉ के हिसाब से क्या तुम्हारा बताया कि जो जब डिस्टेंस जब बढ़ेगा, जब फोर्स क्या होगा तुम्हारा कम होगा। ओके, नाउ हियर क्वेश्चंस आर गिवन, कैलकुलेट द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मास इज गिवन 10 किलोग्राम एंड 20 किलोग्राम, बॉल्स प्लेस सेपरेटेड बाय द 5 मीटर। तो क्या दिया यहाँ पे, देखिए मास कितना दिया तुम्हारा, एक का मास दिया 10, एक का मास दिया आपका, और डिस्टेंस कितना दिया 5 दिया। तो क्या करोगे, सेम F इक्वल्स टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, m कितना है तुम्हारा, G की वैल्यू क्या है 6.673 10⁻11 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 20 बाय 25। तो कैलकुलेशन कर दो, तो आंसर का यूनिट क्या आएगा आपका, जो भी आंसर आएगा वो यूनिट न्यूटन में लिखना है आपको, बराबर है। तो क्या क्या देखे अपन ने आज के टॉपिक में, जस्ट टुडे वी डिस्कस अबाउट द ग्रेविटेशन, और ग्रेविटी क्या है और ग्रेविटेशन क्या है। बेसिकली वी इंट्रोड्यूस द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन लॉ का फॉर्मूला देखिए अपन ने, है ना। क्या है फॉर्मूला, G m1 r स्क्वायर, एंड ग्रेविटेशन फोर्स वी डिस्कस